in our class? Mohit Chaudhary. Mohit? Yes. Mohit, switch on your camera, please. Okay. The same content what I have shared, no? Actually, just 2-3 things I just wanted to discuss with you people, students. But I think this is a students' response is very poor. See, students, I just wanted to share a few things with you people. Meanwhile, students would be joining the class. So, students, this chapter number 1 we have done with this introductions of accounting, and the chapter number 2, that is theory base of accounting. Just a minute. See, students, you people are having the different textbook or different references are there. Tisha Gombal is there in our class. Yes, sir. Tisha, just switch on your camera. Tisha Gombal. Yes, sir. Yes, switch on your camera, please. Sir, I can't switch on my camera. Actually, I'm out of station right now. Mm-hmm. It's okay, na beta. So no problem. Have you joined class regularly? Yes, sir, but I tried joining the class. Even yesterday I tried, but you didn't let me in. Like, I don't know what happened. Someone else entered with my name, and you kicked both Okay. of us, like even me also. Okay. At least whenever you have asked, no, whenever you have asked to switch on the camera, switch on the mic, you should respond so that what? See, students, we are having this virtual connectivity unless until this the classes are regularized. So sometime what happened just so that nobody create this nonsense or precautionary we just take care. I think you people can understand this. Hello. Okay. So let's start discussion, students. Now see, students, we this is actually your NCERT content, the latest one. Okay. Now we have started with, do understand this very carefully. We have started with this chapter 1, introductions to accounting, and we have covered this topic, meaning of accounts, accounting is a source information, objectivity, role of accounting in basic terms in accounting. Basic term of accounting is given separate chapter in reference, है ना? Separate chapter
in reference. Yes. Now this chapter number 2, that is theory base of accounting, also we have started, and we discussed about this generally accepted accounting principle, basis of accounting, basic of accounting concept, system of accounting, that is double entry system, single entry system, and the basis of accounting we have discussed yesterday. When two bases are there, case basis and accrual basis, and a list of accounting standard is also given along with this. So this I just wanted to show you, students. Yeah, one more thing is there. This basis of accounting is also given as a separate chapter in the reference. So now why I'm sharing this all the things with you people, so that you can understand. See, the private publications are having, though they have prepared their books on the basis of this NCERT content only, but just like Grewal, ABD, Arya, or whatever the books are there. So maybe the chapters are more or less. Chapters are more or less, but your textbook is the NCERT. Your textbook is the NCERT, so that you need to understand the things. So these two chapters are there in first unit. First unit, that is theoretical framework, what is there for 12 marks. ठीक है ना? तो आपका जो first unit है ना? I just try to share it with this reference if you are having, or with the syllabus. Syllabus I have shared with you people. No? So theoretical framework, what is there for the 12 marks? So this is completed with this chapter, basis of accounting, what we have discussed yesterday. So if you are finding any difficulty in this basis of accounting, what is case basis, what is accrual basis, agar usme aisa lag raha hai ki something is doubtful, what is not clear, so you can just ask me so that we can discuss. Okay. So now if you see, if you just go through this, just a minute. Okay. Maybe it is missed somewhere. This, you see this. Is it audible, students? Yes, sir. So I just try to explain with this. Though this is the updated syllabus, so term-wise syllabus you would have been already seen. देखा इसको नहीं देखा है अभी हमने? Term-wise syllabus what the CBSE has released now. Term-wise syllabus what the CBSE has recently released. So in this you can see this. This is the latest syllabus of 11, 21, 22. It is given, and this is the term 1 content for the 90 minutes, 40 marks, and this the first unit is going to be covered. So unit number 1, theoretical framework. You can see this, only these 2 chapters are there in this, and these 2 chapters are there for the 12 marks overall. है ना? अभी किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में केवल यहाँ तो 2 चैप्टर ही दे रखे हैं, जबकि हमने तो 4 चैप्टर पढ़े हैं, है ना? सो
basically this distribution is given on the basis of NCERT content. Let me make it very clear, everyone. ठीक है? So that's why I have just explained you this introductions to accounting. It is also including that basic accounting term. What is chapter 2 in your reference? Okay, and the theory base of accounting, that is chapter 2 in the NCERT, is also including the chapter number 4, that is basis of accounting. So actually this is only the 2 chapters, to be very clear, and these 2 chapters are going to be assessed for 12 marks in your first term examination. Is this clear to you students? ये आपका जो टर्म 1 है, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आपका एक तो यूनिट नंबर 1 असेस होएगा पूरा की पूरा, ठीक है, और यूनिट नंबर 2 जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब आज या कल से, है ना. सो यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 इज एक्चुअली फॉर हायर मार्क की ओवरऑल जो ये यूनिट है, दैट इज फॉर 40 मार्क्स, है ना. This unit is overall for 40 marks, but only for 28 marks this will assess, and only what portion will assess, that is recording of business transaction. अब इस नाम से कोई चैप्टर ही नहीं दे रखा है आपकी रेफरेंस में, है ना. रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन दे रखा है क्या? नहीं दिया हुआ है ना. ये क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि ये जो चैप्टर के इन्होंने नाम लिए हैं, ये एक्चुअली एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से लिए है ना. अब जैसे आपकी रेफरेंस में चैप्टर नंबर 5 है अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर है अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, स्पेशल पर्पस बुक, है ना. तो ये रेफरेंस के हिसाब से हम लोग देखें इसको, तो ये जो है ना, यहाँ तक, कहाँ तक, आपका चैप्टर नंबर 12 तक जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 कंसिडर होता है ना. ट्रांजैक्शन मतलब कहाँ से, चैप्टर नंबर 5 से लगा करके चैप्टर नंबर 12 तक जो है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1, और उसके बाद में बैंक रिकंसिलेशन से लगा करके कहां तक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तक होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 2. ये मैं आपको एनसीईआरटी से बताता हूं. मतलब पहले आप इसको समझ लो अच्छे से, ताकि कोई ये कौन है, किसी को एडमिशन ओके, ठीक है. सो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व. सो ये दिस Is it visible, students? Yes, sir. अरे यार, ये तो बहुत ही उलझ गया. हाँ, यहाँ पर थे अपन. Index 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग. Yes, here it is. ये देखिए, ये इसका जो कंटेंट है ना. यस, यू सी दिस. तो हाँ, ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 1. तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये एक्चुअली हमारा यूनिट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना. तो अभी जो आपका इसमें कंसीडर होना है ना, अभी इसमें जो कंसीडर हो रहा है वो क्या क्या चीजें कंसीडर होने वाली है, मैं आपको बता दूं. दिस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड डेप्रिसिएशन, ये पूरा की पूरा जो है आपका चैप्टर नंबर 8 तक जो है, ये पूरा आपका यूनिट नंबर 2 में आ रहा है ना. दिस इज देयर इन यूनिट नंबर 2. सो ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ बता रखा है, दिस चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, दैट इज देयर इन द टर्म 1 सिलेबस, है ना. ये पूरा की पूरा टर्म 1 के सिलेबस में है. बैंक रिकंसिलिएशन है, और ये डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व है ना. So this I just wanted to make it clear to you people.
Now, just give me a minute. Financial accounting theory, basic accounting. This term one syllabus. ओके, तो ये यहाँ पर ये जो यूनिट 2 जो हमें बता रखा है टर्म 1 के करिकुलम में, सिलेबस में जो असेस होने वाला है, इसमें ये चीजें यहाँ दे रखी है. दिस इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक रिकंसिलेशन, डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व. दिस इज देयर इन योर टर्म 1. अब इसके साथ में टर्म 2 में क्या चीजें आ रही हैं ये देखिए. जो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ना, ये अकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रायल बैलेंस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये एक्चुअली यूनिट 2 का ही पार्ट है ना स्टूडेंट्स. ये यूनिट 2 का ही पार्ट है. बाकी बचा हुआ पार्ट है ना, 40 में से 18 नंबर ऊपर असेस हो गए, बाकी के 12 यहाँ पर असेस हो रहे हैं ना. 18 प्लस 12, ये 18 यहाँ पर है. यू कैन सी दिस. ये yes, here it is. नहीं, ये 12th का हो गया. Just a minute. Yes, this one. चलो, लिव इट, बहुत ज्यादा उलझ गए हैं. जस्ट अ मिनट. ये इतनी सारी स्क्रीन ओपन हो गई हैं कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है काफी सारा. आर यू देयर? हेलो. हाँ. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू पीपल कि देखिए, हमारी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो गई है. यूनिट 1 में केवल एक टॉपिक रिमेनिंग है, जीएसटी, जो मैंने कंटेंट आप लोगों से शेयर किया है ना. सो दैट इज ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. यू हैव टू रीड इट. हालांकि वो पूरा की पूरा अभी कवर नहीं होने वाला है, बिकॉज द प्रैक्टिकल पोर्शन इज देयर इन द जर्नल एंड लेजर, दैट इज इन चैप्टर नंबर 7. जब हम लोग जो रिकॉर्डिंग बनाएंगे है ना, when we would be making the transaction, when we would be recording the transaction, at that time the GST would be required है ना. in your reference also it is given later on. मतलब जैसे इसमें आपकी बुक में भी रेफरेंस में ये कहाँ दे रखा है, चैप्टर नंबर 12 दे रखा है ना. चैप्टर नंबर 12 दे रखा है. सो प्रैक्टिकली इट इज गोइंग टू बी असेस्ड लेटर ऑन, बट इन थियोरिटिकल फ्रेमवर्क ऑल्सो इट इज रिकमेंड दैट कुड बी असेस्ड इन थ्योरी, है ना. ये डिस्कशन क्यों जरूरी था, इसको डिस्कशन यहाँ पर जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके रेफरेंस में जो जीएसटी वाला जो पोर्शन है दैट इज गिवन एट द चैप्टर नंबर 12. इसका मतलब कि वो यूनिट 2 में चला गया, जबकि आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है या सीबीएसई के सिलेबस में जो दे रखा है वो दे रखा है चैप्टर नंबर 2 के साथ में, तो वो फिर यूनिट 1 में असेस होएगा, है ना. तो वी वुड बी फॉलोइंग द एनसीईआरटी. दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड द कंटेंट सेपरेटली. यू हैव टू प्रिपेयर इट. अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. विल जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट क्विक explanations on that, and afterward numerically how GST would be recorded in book of accounts. मतलब GST की recordings हम लोग कैसे करेंगे, this we will learn in theory, means in this chapter number 7 and 8 when we would be making the journal entries. Hopefully this is clear to you. If you have any question, है ना, क्योंकि देखो काफी सारी विंडोज वगैरह हो गई थी उसमें, तो अगर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है तो मुझे बताओ कि सर ये क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा फिर से बता दीजिए, तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, है ना. कौन कौन है क्लास में? यस, देवांश, मोहित, नमन, नंदना, टीशा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरी सो प्लीज आस्क मी कि सर ये क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको. इज इट क्लियर कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? हेलो सर, आप एक बार रेफरेंस बुक का वो इंडेक्स खोल के बता दो ना, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं है. हाँ, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट शोइंग यू.
Okay. Is it visible? Can you see this? Yes, sir. है ना? So see, I'm just एक्सप्लेनिंग टू दिस, तो आप उसको मार्क कर लो इस टाइप से, है ना? ये जो हमारे हैं ये चारों चैप्टर, ये है हमारा यूनिट नंबर 1 जो कि 12 मार्क्स के लिए है, ठीक है? यू जस्ट मार्क इट। और फिर यहाँ से चैप्टर नंबर 5 से लगा करके चैप्टर नंबर 18 तक जो है हमारा यूनिट नंबर 2 है, जो ओवरऑल 40 मार्क्स के लिए है, ठीक है? फिर उसके बाद में आता है यूनिट नंबर 3, तो उसमें यूनिट नंबर 3 में ये 3 चैप्टर कवर होते हैं आपके। यूनिट नंबर 3 है वो 20 मार्क्स के लिए है, और दिस इज देयर यूनिट नंबर 4 फॉर 8 मार्क्स। ये आपका ओवरऑल 80 मार्क्स का सिलेबस हो जाता है यहाँ पे, है ना? दिस इज फॉर ओवरऑल इट इज फॉर 80, है ना? क्या ये समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. है ना? सो नाउ व्हाट इज देयर, है ना? यू प्लीज डू अंडरस्टैंड कि अब जो भी आपका टर्म 1 में जो असेसमेंट होने वाला है, टर्म 1 में कौन कौन सी चीजें आनी है, मतलब कौन कौन सी चीजें एग्जामिनेशन में असेस होने वाली है ना? जो सिलेबस में दे रखा है वो एनसीईआरटी के बेसिस पर दे रखा है ना? तो उसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा इफ यू आर यूजिंग द एनसीईआरटी, बट सपोज यू आर यूजिंग दिस रेफरेंस, देन देयर वुड बी सम कंफ्यूजन। तो मैं यहाँ पर ब्लू से मार्क कर रहा हूँ कि टर्म 1 में कौन कौन से असेस होने वाले हैं, है ना? तो वो आप भी मार्क कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस वन इंट्रोडक्शन बेसिक, दिस ये 4 चैप्टर मतलब यूनिट 1 कंप्लीट वुड बी असेस फॉर द 12 मार्क्स। अब इसमें से क्या क्या असेस होने वाला है? So accounting equation, accounting procedure, origin of transaction, general, ledger, special purpose book second, GST, है ना? And chapter number 15 and chapter number 60 ये आपका होएगा इसमें टर्म 1 में, है ना? ये 40 नंबर का जो है इसमें से सम पोर्शन वुड बी असेस। 28 मार्क का जो असेस हो रहा है वो टर्म 1 में हो रहा है, और 12 मार्क का जो असेस होएगा वो टर्म 2 में असेस होगा। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं उनको, है ना? तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर नंबर 13 में, एंड ट्रायल बैलेंस ऑल्सो, ये टर्म 3 का हिस्सा हो गया, ठीक है? टर्म 3 में ये तीनों चीजें आ जाएंगी, और बाकी का बचा हुआ जो है वो भी पूरा की पूरा, सॉरी टर्म 2 में आएगा बाकी का, जो यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4 है वो बी कंप्लीट पोर्शन, ठीक है? So like this it will go. I will just prepare separately this and I will just share in your class WhatsApp group, so there would not be any confusion. देखिए अब यहाँ पर अभी इन सारी चीजों को डिस्कस करने के पीछे क्या रीजन था कि ये जो ये जीएसटी वाला जो चैप्टर दे रखा है यहाँ पर, देखो ये इसमें दिया हुआ है आपकी रेफरेंस में 12 दे रखा है, मतलब कि ये कौन से यूनिट का पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया आपके यूनिट नंबर 2 का। लेकिन इसका असेसमेंट एक्चुअली कहां पर होएगा? इसका असेसमेंट होएगा यूनिट नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि एज पर द सिलेबस दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द पार्ट ऑफ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जीएसटी थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। तो इसका जो असेसमेंट है वो वहां पर होने वाला है, यहां पर होने वाला नहीं है ना? टू बी वेरी क्लियर। हाँ, उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, जीएसटी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन उसका जो मेनली थ्योरेटिकली दिस विल असेस हियर इन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग टर्म 1 में, है ना? नहीं तुम बोलोगी सर वो तो 12 चैप्टर नंबर 12 में था और वो तो यूनिट नंबर 2 में था, तो उसके क्वेश्चंस टर्म 1 में कैसे आ गए? तो उसके क्वेश्चंस थ्योरी बेसिस मींस सम थ्योरी क्वेश्चंस मे बी असेस्ड इन term 1 also, that is because of as per the prescribed syllabus it is in term 1 only,
As per the prescribed syllabus, it is there in term 1 only. Numerically, it will assist in term 2. Clear it is? Any confusion if you have? Yes, please. Any confusion, dear students? No, sir. Okay. So now GST, the content what I have shared with you people, have you studied it? आपने उसको पढ़ा? Have you studied this content? What information you have got through this? Just let me have some idea about. Yes, this I have shared in your class WhatsApp group and I have asked you the in previous period to go through it. कि आप इसकी रीडिंग करें, हम लोग नेक्स्ट पीरियड में हम डिस्कस करेंगे. So let's start with this, students. And as it is already mentioned above, that is a goods and service tax in one country and one tax, and that is TAX tax. Yes. So what you have understood? क्या आपको समझ में आया इसमें? Yes. Just share your reflections. Yes, students. Now it's your turn. Who are there in the class? सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ, मोहित की आवाज मुझे बराबर आ रही है, कंटिन्यू आ रही है. Rest, Devansh, Naman, Nandana, Tisha, are you there in the class or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Then just share your reflection. आपको मैंने ये कंटेंट पढ़ने के लिए दिया था बेटा पिछले पीरियड में, है ना, कि you just go through this. आप इसकी रीडिंग करो, हम अगले पीरियड में इसको डिस्कस करेंगे. दिस इज द लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स ऑफ योर यूनिट नंबर 1. कल से हम लोग यूनिट नंबर 2 चालू करने वाले हैं. ठीक है ना? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे बताएं कि सर यूनिट 1 में हमें ये समझ में नहीं आया है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर नॉट क्लियर और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट क्लियर और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इज नॉट क्लियर और नथिंग एल्स. But if it is done, then this is the last topic what we are discussing today. So now just tell me कि आपने इसमें क्या पढ़ा और क्या समझा. Somebody tell me about what do you mean by taxes. है ना, ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, यहाँ पर टैक्सेस ही लिखा होना चाहिए था केवल, है ना. So I just cut it डायरेक्ट वर्ड, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स इज a type of tax. Yes, what do you mean by word taxes? सिंपल क्वेश्चन जो कि आपने पहले की क्लासेस में भी स्टडी कर रखा है. यस प्लीज. The part of a income which goes to go. हाँ. So the taxes is what? Taxes is the primary source of revenue what the government get. है ना भाई, सरकार तो किस लिए है? गवर्नमेंट किस लिए? वेलफेयर के लिए. गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है. तो वेलफेयर के लिए क्या चाहिए? रुपए. अब सरकार या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग मनी to do the welfare. Okay, though the government is there in some few sectors, but that is also for the welfare. The government is there for the social welfare for just to maintain for the law and orders and a smooth living in the country. And that's why we just made the government. गवर्नमेंट को किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया. ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास में पैसे कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट के पास में पैसे आएंगे टैक्सेस से, है ना. तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस दे आर मींस दे लिवाइड ऑन देयर सिटीजन. ठीक है. वेरी कॉमन टैक्सेस आर देयर, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, है ना, सेल टैक्स एंड सो मेनी अदर वर्ड्स वी यूज टू हियर. सो बेसिकली स्टूडेंट्स वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर द टू टाइप ऑफ टैक्सेस, है ना. पहले तो हमने ये समझ में आ जाना चाहिए कि टैक्सेस क्या है. सो टैक्सेस इज नथिंग बट अ प्राइमरी सोर्स, है ना. टैक्सेस इज नथिंग बट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ revenue for the government. Is this point clear? क्या ये सभी को समझ में आया?
यस कि टैक्सेस क्या है, जो हम लोग जो टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, है ना, हमने इनकम टैक्स पे किया, हमने हमारी कार के ऊपर रोड टैक्स पे किया, बाइक के ऊपर रोड टैक्स पे किया, है ना, या फिर हम रेस्टोरेंट में गए, वहां पर हमने मतलब कि जो भी वट एवर द फूड वी हैड, और सपोज द बिल वॉज 3,000 रुपीज, तो उसके ऊपर उन्होंने 18%, 12%, 15%, वट एवर द रेट ऑफ जीएसटी दे हैव अप्लाइड, एंड दैट टैक्सेस दे हैव चार्ज। ठीक है, पहले हम लोग कुछ और दूसरे तरह के टैक्सेस भी पे करते थे, लाइक दिस टाइप ऑफ द टैक्सेस वर आल्सो देयर अर्लियर, है ना। सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, सीएसटी होता था, कस्टम होता था, है ना। देन वेट होता था, वेट इज अ वैल्यू एडेड टैक्सेस, ठीक है। एंट्री टैक्स होता था, ऑक्ट्राइट होता था, लग्जरी टैक्सेस होते थे। इफ यू आर मेंटेनिंग अ लग्जरी लाइफस्टाइल, देन यू वर एक्सपेक्टेड टू पे अ लग्जरी टैक्स, ठीक है, एंड सो मेनी अदर टैक्सेस वी वर पेइंग। So this all taxes we paid to the government, because the taxes are the main source of revenue for the government. गवर्नमेंट के पास में पैसा कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है, ठीक है, जो सिटीजन टैक्स पे करते हैं। सो टैक्स बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। The two categories there of taxes, direct tax and indirect tax. Now what does it mean direct tax? देखो ध्यान से समझे इनको, और कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। Anyway, not highlighting. So direct taxes are what? So all those taxes what we pay to the government directly, है ना। आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो ऑलमोस्ट वुड बी पेइंग द इनकम टैक्स, सभी इनकम टैक्स पे कर रहे होंगे। एंड हाउ दे वुड बी पेइंग? दे आर डायरेक्टली पेइंग टू द गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट के खाते में डायरेक्टली वो टैक्स डिपॉजिट कर रहे हैं इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो भी उनका प्रोसीजर है थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, या जो भी उनका प्रोसीजर है, हम लोग डायरेक्टली वो टैक्सेस वी यूज टू डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, और डायरेक्टली वी आर गिविंग द टैक्सेस टू द government. That's why it is called the direct tax. The example of direct taxes are what? Income tax, what we pay on our income. House tax, what we pay on our house. ठीक है, लैंड हमारी है, घर हमारा है, हमने बनाया है ना, सारी कुछ चीजें हैं। Then also we have to pay the taxes because our house come under the this एरिया ऑफ दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो भी विलेज पंचायत है, जो कुछ भी है उसके एरिया में आता है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेंस वी हैव टू पे द टैक्सेस। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ अनदर टाइप ऑफ टैक्सेस इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? दिस इज द एग्जांपल, है ना, दिस इज द एग्जांपल। बिसाइड दिस अराउंड 40 टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर देयर। या तो बता रखे हैं ये टैक्सेस, बट इसके अलावा भी अराउंड 40 टाइप ऑफ टैक्सेस वर देयर। So this all taxes are considered as a indirect taxes. Now why it is considered as indirect taxes? Because this tax we do not pay to the government directly. ये टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं। ये टैक्सेस हम लोग पहले जो मिडिल मैन होते हैं उनको पे करते हैं, एंड ग्रेजुअली इट रीच टू द गवर्नमेंट, है ना। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर हमने वी हैड अ लंच और वी हैड अ डिनर, एंड द बिल वाज 4,000 and the 500 rupees was GST levied. So 4,500 rupees we have paid. So the restaurant owner will take 4,000 rupees, and 500 rupees he has taken on behalf of government. So we have paid 500 rupees to that restaurant owner as a tax. Further, he will pay to his upper body, and gradually the tax will reach to the government. वो ग्रेजुअली एक वो प्रोसेस से वो टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। तो हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमने इनडायरेक्टली वी हैव पेड। सो दैट्स व्हाई इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। सो होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि देयर आर द टू टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन है तो पूछें आप, ठीक है। सो इन इंडिया टू टाइप ऑफ टैक्सेस आर देयर, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है।
Now students, this all 40 type of indirect taxes, this all 40 type of indirect taxes are merged with one tax known as GST. This all 40 type of taxes are subsumed under the one title that is known as GST. What is the full form of GST? Can anyone tell me? What is the full form of GST? Tell me someone. Goods and service tax. Very good. Once I have asked this question in one of my class, then a student replied Gabbar Singh tax. What Rahul Gandhi used to state this tax. So goods and service tax, okay? GST. Goods and service tax is also an indirect tax, renamed with 40 different taxes what were used to apply, what were used to levied in India. जैसे सेंट्रल टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होती थी, सेंट्रल टैक्स होता था, कस्टम ड्यूटी होती थी, है ना, और भी काफी सारे जो टैक्सेस लगते थे, उन सभी को इंपोर्ट ड्यूटी होती थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती थी, है ना, वो उसमें से कुछ एक अभी भी हैं, है ना, दैट इज नॉट रिमूव्ड कंप्लीटली, बट कुछ एक लेवल पर उनको हटा दिया गया है ना. तो स्टेट वेट होता था, एक वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, है ना, जब हम गुजरात से राजस्थान में सेल कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगता था, है ना, जब हम गुजरात के ही एक when a businessman of Gujarat is selling to the another businessman of Gujarat, then also some taxes were levied. So different type of taxes were there. So this all different level of taxes has been removed, and only the one tax has been introduced, that is GST, goods and service tax. So that's why it is stated that कि one nation one tax, जो ये टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, सॉरी, what the punchline is given here, goods and service tax, that is one country one tax. So what does it mean? कि only a type of tax is there, one type of tax is there, and that is only would be levied. No other taxation, no other taxes would be levied on this. Okay, so this was the basic information about this, students. Now when you just go through this characteristics of the goods and service tax, so you can understand कि what does it mean. थोड़ा सा इनको स्टडी करें तो समझ में आएगा कि GST is a common law and procedure through the country under the single administration. GST is a destination-based tax and levied at the single point at the time of consumption of goods and service by end consumer. देखिए, students, you need to understand कि all the taxes ultimately who bear? Who has to bear the taxes? Can you tell me? Ultimately,